Jai Hind everybody. So as you all know, we have already started the chapter crop production and management, and under that chapter we have discussed about the basic practices of crop production. So in the last lectures we have discussed about many practices for the production of the crop. What all farmers do, they carry out different techniques for the better yield, for the better crop produce. Now, today we will be discussing about the food from animal resources. Now, we have discussed how we get the food from plant resources under basic practices of crop production. क्या क्या हम किस तरह हमें crop produce मिलता है. Now, दिस एग्रीकल्चर की जो स्टडी है, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द टेक्निक्स और अबाउट द क्रॉप प्रोड्यूस, बट इट ऑल्सो includes the animal study also and the food which we get from animal resources. So rearing of animals we also study in agriculture, because farmers, apart from doing agriculture, apart from doing farming, they also keep animals also, okay, and they get the food from them also. So now today we'll be studying that only, ki what foods we get from animals. So the first is, that is dairying. Now dairy, as you all know, it is a milk produce. Milk is the main source from which dairy products are made. So plants and animals, they are the major source of our food. As you all know, milk is an important food material for us. We obtain milk from animals such as cow, buffaloes, goat and sheep. Buffalo and cows are the major source of milk in our country. Rearing cattle for producing milk and milk products on large scale is called dairying. So dairying includes rearing also, rearing of cattle for the production of milk, and from the milk the various milk products are produced on a large scale in industry. So this all includes dairying, and we can say it's a type of cattle farming. Cattle farming हम करते हैं जिसमें हम जिसके अंडर आता है आपका dairy. Okay, so as you all know, cow and buffaloes, they are the main source of milk production, and the animals which give milk, which yield milk, such animals are termed as milching animals. इन animals को हम क्या बोलते हैं? Milching animals. Okay, and so such animals are known as milching animals. Now what milk products we get from milk? कौन कौन से milk products हम बनाते हैं, like industries manufacture करती हैं किस किस milk product का by using milk, like milk, apart from milk, like curd, cheese, butter, ghee, khoya, ice cream, kulfi. These are the various milk products you can say which are manufactured on large scale. now ये जो kettles होते हैं, इनमें lactation period होता है. now ये lactation period क्या होता है? एज यू ऑल नो, जैसे ही जो काउज़ या केटल्स, बफेलोज़ होते हैं, जब वो बेबी को बर्थ देने वाले होते हैं, या तो कह लें जब जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है वो मिल्क देना बंद कर देते हैं, और जब बेबी बॉर्न हो जाता है, स्मॉल कैटल बॉर्न हो जाता है, तब वो मिल्क देना शुरू कर देते हैं. सो द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन between the birth of young one and the next pregnancy, that period is known as lactation period. ठीक है, तो the period which is between the birth of young means young ones का birth हो जाना और उसके बाद next pregnancy तक, उसके बीच के पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड. और ये वो पीरियड होता है जब जो केटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस मिल्क. Okay, now this is about your dairying. Now next is your poultry farming. Okay, poultry, will be going to study about poultry. Now here poultry, it is also done in large scale for commercial purpose. So it includes birds like chicken, hen, duck, geese, turkey. These are the commonly used birds which are a good source of animal food.
and what we get from them, we get eggs and meat in the form of food. हम इन सब birds से हम milk और egg we use. Okay, so now these egg and milk, they are the rich source of protein. As you all know, ये जो egg और milk होते हैं, they are very good source of protein. Now what is poultry? Poultry होता क्या है? Like we have studied dairying. Now poultry farming क्या होता है? That is the rearing and breeding of poultry or rearing of breeding of hen, chicken or birds for meat and egg. This is known as poultry farming. So here we rear the birds. That is we do everything taking care of birds, including medical facility, giving nutritious food. तो ये सब रेयरिंग में आता है. और ब्रीडिंग होता है कि उनकी ब्रीडिंग कराना, मीन्स अच्छे लाइक क्रॉस ब्रीडिंग भी कराते हैं. ओके, यंग वंस को प्रोड्यूस करना, जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनको क्रॉस करा के न्यू ब्रीड्स का प्रोडक्शन करना. सो दैट ऑल इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग. Now the place where this poultry is done, they are termed as poultry farm. ये बड़े बड़े farms होते हैं. You can see in the figure. यहाँ ये फार्म्स होते हैं जहाँ पे हैंस और चिकन को रखा जाता है, और यू कैन से बर्ड्स को रखा जाता है. ओके, फॉर कमर्शियल पर्पसेस. नाउ व्हाट हैपन, व्हाट वी डू हेयर, एज यू ऑल नो कि जो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनका 21 डेज़ का होता है. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब जो है हैचिंग होती है. लाइक हैन जो होती हैं वो एग ले करती हैं, उसके बाद वो पहले एग ले करती हैं, उसके बाद दे सिट ऑन द एग फॉर एटलीस्ट 21 डेज़. उनको वार्मथ देने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए. और उसके बाद जो है हैचिंग होती है. तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, एंड इन केस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, ये जो इंक्यूबेशन है इट कैन बी कंट्रोल्ड ऑल्सो. ये कंट्रोल भी किया जा सकता है आर्टिफिशियली. इसीलिए जो बड़े बड़े से इंक्यूबेटर्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि जो हैचिंग भी जल्दी हो और एग का भी प्रोडक्शन जल्दी हो. तो ये जो है कंट्रोल किया जाता है, और ये सब कुछ फार्म्स में किया जाता है. ओके, सो फाउल ले एग एंड सिट ऑन द एग फॉर 21 डेज़. दिस पीरियड इज़ नोन एज हैचिंग पीरियड. इसको हम बोलते हैं हैचिंग पीरियड. आफ्टर दिस इसको, और ये जो टाइम होता है दैट टाइम इज़ नोन एज इंक्यूबेशन टाइम. ठीक है, एंड आफ्टर दिस पीरियड द एग्स क्रैक एंड चिक्स कम आउट. द प्रोसेस ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इज़ कॉल्ड नेचुरल हैचिंग. सो जो अपने आप जो होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस, कि हैन जो है 21 डेज़ तक बैठती है और फिर जो एग में हैचिंग होती है और चिक्स निकलते हैं. तो ये अगर नेचुरली हो रहा है देन इसको हम बोलेंगे नेचुरल हैचिंग. लेकिन इन केस ऑफ पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशंस जो हैं प्रोवाइड भी की जाती हैं एग को, जिससे कि हैचिंग पीरियड को हम कम कर सकें और हमको हैन जो है बहुत चिक्स जो हैं वो जल्दी मिल जाएं. सो दीज हैचिंग in poultry farm, it is done in a incubator under controlled temperature and controlled moisture conditions. So this is how hatching is done in case of poultry farming. Now अब हम बात करते हैं poultry care. This is very important कि poultry की केयर करना. Now how it is done? Now as you all know कि पोल्ट्री all the rearing में सब कुछ आता है. Providing nutritious food, sanitation conditions, एयर फुल ऑफ एयरी कंडीशन, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी पोल्ट्री फार्मिंग में केयर में आता है. केयर माने होता है देखभाल करना. सो पोल्ट्री रिक्वायर गुड केयर फॉर फूड, शेल्टर एंड डिजीज़ कंट्रोल. ठीक है, सो गुड शेल्टर, नीट एंड क्लीन शेल्टर इज़ प्रोवाइडेड. एयरी कंडीशंस होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड उनको दिया जाता है, विटामिन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है. और उनका रेगुलर जो है उनको सैनिटेशन भी किया जाता है ताकि वो डिज़ीज़ से फ्री रहें.
So during growing period from the birth to sexual maturity chickens require now बर्थ से लेके जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक उनमें सेक्स ऑर्गन्स या हम ये कह सकते हैं गैमीट्स प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हो जाता है, तब तक उनको कुछ कंडीशंस उनके लिए उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें से इनफ स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। देन फीड जो है उनकी न्यूट्रिशन है, जो फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ टू बी वेरी न्यूट्रिशियस, कैलकुलेटेड होना चाहिए। ओके, एंड नाउ ड्यूरिंग लेइंग पीरियड, नाउ अभी हमने बात की ग्रोइंग पीरियड, बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी तक उन्हें ये कंडीशंस दी जाती हैं। नाउ व्हेन द हैन इज़ रेडी टू ले एग्स, जब वो मैच्योर हो गई है एग्स ले करने के लिए, उस समय भी स्पेस तो इनफ होना ही चाहिए। नाउ प्रॉपर लाइट एंड सफिशिएंट वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ये सेकेंड कंडीशन है। और दूसरा, उनको जो खाना दिया जाता है दैट शुड बी रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड के। ओके, सो इनको जो है इसलिए ये खाना दिया जाता है, लाइक प्रोटीन रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट दी जाती है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मीट, अगर हम मीट खाते हैं तो मीट के लिए क्या होता है कि वेट अच्छा होना चाहिए पोल्ट्री हेंस का, ठीक है। वेट ज़्यादा होगा तो उनको उसका रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। सो ये वेट को भी इंक्रीज़ करने के लिए उनको न्यूट्रिशियस रिच डाइट दी जाती है। ओके, बिकॉज एज यू ऑल नो कि पोल्ट्री फार्मिंग में हम दोनों के लिए ही फार्मिंग करते हैं। रेयरिंग और ब्रीडिंग जो हेंस की जाती है बर्ड्स की, वो दोनों ही पर्पस के लिए की जाती है, मीट के लिए भी की जाती है और एग के लिए भी की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द फूड रिसोर्स इज़ योर फिशिंग, ठीक है, फिशरीज़। सो जिसको हम पिसी कल्चर भी बोलते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फिश in large scale production of fish is known as pisciculture. Now as you all know, fish is a aquatic animal and fish is a rich source of protein and iodine. This is very important. फिश जो है रिच सोर्स होता है प्रोटीन और आयोडीन का। और बेसिकली इन कोस्टल एरियाज़ अगर हम बात करें, बॉम्बे, केरला, ये सब आपकी गोवा, ये सब कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो सी फूड है बहुत ही मेजर डाइट होता है लोगों की। ओके, क्योंकि इसमें जो है आयोडीन बहुत होता है और जो कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, प्रोटीन बहुत पाया जाता है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सी फूड्स होते हैं या फिशेस होती हैं वो किस सोर्स में रिच होती हैं, क्या चीज़ उनमें रिचली प्रेजेंट होता है। Now this production of fish on a large scale by farming fish culture in fish nurseries is known as pisciculture. So ये जो है नेचुरली भी किया जाता है और ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली की बात करें तो हैचरीज़ होती हैं, स्मॉल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, मैन मेड पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिनको हम हैचरीज़ बोलते हैं। और वहाँ पे फ़िश को कल्चर किया जाता है, जो भी हमको ब्रीड चाहिए। ओके, हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उस ब्रीड को कल्चर करते हैं, उसकी रेयरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उसको अच्छा खाना दे के। ओके, और देन दिस फिशिंग इज़ डन। सो फिशिंग इज़ डन बोथ नेचुरली ऑल्सो एंड आर्टिफिशियली ऑल्सो। नाउ द हैचरीज विथ सर्कुलेटिंग वाटर लाइक ponds, lakes, canals, they are known as natural hatcheries. ना हैचरीज़ की हमने बात की, ठीक है। जो ये हैचरीज़ दोनों ही तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं एंड नेचुरल भी होती हैं। ओके, नेचुरल हैचरीज़ की बात करें जो नेचुरली डेवलप्ड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे आपका सी हुआ, लेक्स हुए, कैनल्स हुए, पॉन्ड्स हुए, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे भी जो है फिशिंग की जाती है। ओके, द यूज़ ऑफ नेचुरल हैचरीज हैज़ इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फ्रॉम 30% to 90%. सो नाउ लाइक एज यू ऑल नो, फिश जो हैं सबसे लाइक ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। सो देयर आर रिस्क ऑफ प्रेडेटर्स ऑल्सो, लार्ज फिश इनको खा लेती हैं, तो उनको इसलिए बड़े होते तक कुछ ही फ़िश ज़िंदा रह पाती हैं। बट बाय यूजिंग द नेचुरल हैचरीज़, ये सब प्रैक्टिसेस करने से वी हैव इंक्रीज द
survival rate of fish has also been increased. Okay, so this is about the fishing, how is fishing is done. Now next let's talk about the फिशिंग में ही हम पढ़ेंगे कि फ़िश जो है दो तरह की होती हैं, एक मैरीन फ़िश होती है और एक फ्रेश वाटर फ़िश होती है। जो सी वाटर में फ़िशेस पाई जाती हैं सच फ़िशेस आर नोन एज मैरीन फ़िश, और जो कोस्टल एरियाज़ जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं लाइक पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, वो फ्रेश वाटर फ़िश कहलाती हैं। सो दोनों ही तरह से फ़िशिंग होती है, जिसको हम कल्चर फ़िशिंग और कैप्चर फ़िशिंग के अंदर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कल्चर फ़िशिंग होता है आर्टिफिशियली फ़िश को कल्चर करना। ठीक है, छोटे छोटे से पॉन्ड्स बना के आर्टिफिशियली, ठीक है, मैं पॉन्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, ओके, उसमें फ़िश को कल्चर कराते हैं, तो उसे कल्चर फ़िशिंग बोलते हैं। और कैप्चर फ़िशिंग होता है जो कि हम ओशन में या लेक्स में या सी में करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर फ़िशिंग। सो दो टाइप्स की फ़िशिंग होती हैं, कल्चर फ़िशिंग एंड कैप्चरिंग फ़िशिंग। ओके, सो दोनों ही तरह की फ़िशिंग जो है फिशरमैन होते हैं, दे कैन यूज़ दैट। ओके, बस हमें याद क्या करना है, कल्चर फ़िशिंग इज़ डन आर्टिफिशियली और कैप्चर फ़िशिंग जो है वो नेचुरल कंडीशंस में की जाती है। फ़िश वाटर बॉडीज़ में जाल डाल के फ़िशेस को पकड़ा जाता है। In order to maintain fish farm in good healthy state, regular monitoring of quality of water for dissolved oxygen pH is very important. In case of any disease, proper treatment should be immediately given to the fish. So because this fishing is also done in large scale, तो इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये जीविकोपार्जन का एक और ज़रिया है, तो इसलिए हमें उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, ताकि जो भी जहाँ पे फ़िश डेवलप हो रही हैं वो जो एटमॉस्फेयर है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि फ़िश जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें और उसका रिटर्न जो है वो फिशरमैन को मिले। ओके, अगर कुछ ऐसा होता है सो दैट नीड टू बी मॉनिटर्ड, उसको मॉनिटर किया जाता है और इफ़ेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं फॉर दैट। ओके, नाउ द लास्ट इज़ योर एपीकल्चर। नाउ एपीकल्चर इज़ द रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल, हनी बी का रियरिंग करना। ठीक है, एज़ यू ऑल नो हनी बी जो है वो छत्ते लगाती है पेड़ पे आपने देखा होगा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम छत्ता बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, तो वो नेचुरल ही वो कहीं भी लगा देती है, पर इसको कमर्शियल पर्पस में भी किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पस में भी किया जाता है फॉर मोर आउटपुट और फॉर इनकम यू कैन से। तो हनी बी जो है हनी बी जो है, जो हनी हमें मिलता है हनी बी से, वो it is a rich in sugar, mineral and enzyme. This is very important। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हनी मिलता है वो किस में रिच होता है, उसके अंदर क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो शुगर, मिनरल एंड एंजाइम, दिस यू नीड टू रिमेंबर। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरी मेडिसिन ऑल्सो, शहद का यूज़ किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। okay, so now the honey is produced by honey bee from the nectar of the flower and kept in beehive. So that you already know कि honey जो है, honey bee किस तरह it extracts the nectar वो extract करती है फ्लावर से, अलग अलग फ्लावर के रस को चूसती है और फिर वो उसको beehive या कि छत्ते में ले जाती है। और ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है, छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाए जाते हैं जहाँ पे हनी बी को आर्टिफिशियली तरीके से जो है बीहाइव जो है उसको बनाते हैं, और वो कमर्शियल पर्पस से वो आर्टिफिशियली तरीके बड़ी बड़ी फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कभी आप जाइए हाईवे पे तो आपको दिखता है, ठीक है, छोटे छोटे से बॉक्सेस रखे रहते हैं कुछ कुछ दूरी पे, तो वो हनी बी कल्चर के लिए होते हैं, एपीकल्चर के लिए होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ साइकिल होती है हनी बी की वो 16 डेज़ की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। एंड दिस लाइफ साइकिल हैज़ 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस होते हैं, और कितने कितने दिन की होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये 16 डेज़ को कैसे डिवाइड किया गया है। एग से लार्वा बनने में 3 दिन लगते हैं, लार्वा टू प्यूपा 6 डेज़,
pupa to honeybee is 7 days. So this is very very important, you should remember. So ये total जो है 21 days का इनकी life cycle होती है. So extraction of honey from the beehive is carried out by honey extractor. Honey extractor are an experienced group of people. Now ये जो honey जो है निकाला जाता है honey ये beehive से, या हम कह सकते हैं beehive, तो ये जो expert लोग होते हैं, experienced ग्रुप के लोग, एक्सपीरियंस ग्रुप होता है जिनको हम हनी एक्सट्रैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं. ओके, एंड दे टेक आउट द हनी फ्रॉम द beehive and then they sold it then they sell this in the market. So this is also carried by local peoples also. जो भी रहते हैं local peoples भी ये काम करते हैं, और फिर commercial basis पे ये बड़े बड़े फील्ड्स में किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट, द फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल and how we get these foods. Okay, with this we have completed the chapter, that is your crop production and management. And next, now we will start the new chapter on the next week. So this is all for now. Thank you.